مدثر کی عنایت پڑھنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ جزاک اللہ خیر ختیجہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین علم نافع اور دنیا آخرت کی خیر سے نوازے، آمین۔ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارا ایک حدیث ریمائنڈر ہوتا ہے ایوری تھرسڈے۔ تو ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے سدرا صدیقہ، انشاءاللہ۔ سدرا انمیوٹ کرو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم وأما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری 40 حدیث میں سے حدیث نمبر 13 ہے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم تھے، سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی صحیح معنی میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بخاری و مسلم۔ اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت سی احادیث صحیح ستہ جو 6 اوتھینٹک بکس میں موجود ہے، جن کی تفصیل کا مواقع نہیں ہے۔ ان احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ انسان اگر اپنے لیے کچھ اور پسند کرے اور دوسرے کے لیے کچھ اور، تو اس سے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر اور اعلیٰ تصور کرتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے کرو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو، اور اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے رہو وہ لوگوں کے لیے ناپسند کرو، اور اچھی بات کہو یا خاموش رہ جاؤ۔ یزید بن اسد رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی۔ آپ نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہمارے معاشرے کا یہ ناصور ہے کہ ہم اکثر اپنے گھر سے دوسرے گھروں میں وہ چیز بھیج دیتے ہیں جسے خود کھانا یا استعمال کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہ واقعہ غریب لوگ اور نوکروں کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ امیر اور مالدار لوگوں اپنے گھر کی بچی ہوئی چیزیں غریب اور نوکروں میں تقسیم کر دیتے ہیں جنہیں وہ خود استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دراصل ایک انسان کے ایمان کے نامکمل اور ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، اور اکرام مسلم کا تقاضا یہ بھی ہے اور ایمان کامل ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہو اسے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔
جزاک اللہ خیر زدرا، بہت ہی پیاری حدیث سنائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے اور اپنے لیے بھی وہی پسند کرنے جو اپنے دوست اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اتنی زیادہ اخلاق والی اور اتنی زیادہ تقوی کی قوت عطا فرمائے. اتنی چھوٹی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کو بہترین صلاحیت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے اور دنیا اور آخرت کا تمام خیر عطا کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو کہ اس سیرہ کا سیشن ہے 12th سیشن ہے، جس میں ہم نے اب تک 11 سیشنز الحمدللہ باذن اللہ کے فضل سے مکمل کیے ہیں، اور ہم سیرہ پڑھ نہیں رہے ہیں. یہ چیز ہم یاد رکھیں، بار بار ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم سیرہ پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ ہم سیرہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیرہ ریڈ کرنا اور سیرہ لرن کرنا میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس فرق کو جانیے. ہم سیرہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ زندگی کے پیارے موتی ہم پک کریں اور اپنی زندگی میں اسے سجائیں، تاکہ ہماری بھی زندگی پر نور ہو جائے اور اللہ کی رضا والی زندگی بن سکے. یہ ہماری کوشش ہے اس سیرہ سیشن کے تھرو. اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے اخلاق ویسے بنا دے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ کے مبارک سیرہ میں ہم دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم 12th سیشن دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہماری بہن شاہینہ پروین جو ہے نا، انشاءاللہ جو ہماری سیرہ کی ٹیچر بھی ہے، کو ٹیچر ہے، وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. سبھی تعریفیں اور شکر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین. جیسا کہ ہماری ٹیچر فرات نے بتایا کہ ہم سیرہ پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ سیرہ سیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سارے وہ پل جو انہوں نے اپنی 63 ایئرس کی زندگی میں کیے، اس کو ہم شروعات سے دیکھ رہے ہیں. ان کے بچپن کے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر بھی اس چیز کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے ایک پچھلی کلاس مس ہو گئی تھی کیونکہ ہولیڈے تھی، اور ہم نے 11th جو سیشن کیا تھا تو اس کو تھوڑا سا پھر سے ریمائنڈ کریں گے کہ ہمارا جو سیشن ہوا تھا وہ دعویٰ کے سلسلے میں تھا، جس میں پرائیویٹ دعویٰ تھا. ایسے تو خفیہ دعویٰ سیرت کی کتابوں میں ہے، لیکن ہم اس کو خفیہ دعویٰ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ چھپ چھپا کے تو ہوتا نہیں تھا کسی کونے میں بیٹھ کے. ہاں، یہ پرسنلی ضرور تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل کی اور ان کو ایک دائی کے طور پہ تیار کیا، اس سورہ کی آیتوں میں ایک دائی کو کیا کیا کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف پکاریے. تو انہوں نے اس کے بعد سے دھیرے دھیرے لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانی شروع کی. ایک دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کہتے کسے ہیں؟ دعا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا یا بلانا. اسلام میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اس سے جوڑنا، جو جوڑنے کا جو فینومینا ہے اس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے. قرآن میں ایک آیت کا ترجمہ ہے جو کہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کا ہے کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو ہم دعویٰ کی بات کر رہے تھے. پرائیویٹ دعویٰ جو تھا کہ شروعات ہوئی پرسن ٹو پرسن. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر پہ آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا، اور وہ فرسٹ لیڈی تھیں، بلکہ فرسٹ
पर्सन कहेंगे इस्लाम में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, और उसके बाद से अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, और धीरे धीरे यह दावत पर्सन टू पर्सन चलता गया। और यह दावत जो थी बिल्कुल पर्सनल थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में दावत दिया, लेकिन लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दिन लेकर आए, और यह खबर यमन तक फैल गई। वहां से एक कोई आदमी आए जो कि इस्लाम कबूल करना चाहते थे, लेकिन अभी चूंकि यह दावत जो थी सिर्फ पर्सनली थी, अभी मक्के से बाहर नहीं गई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नरमी से जवाब दिया कि अभी यह दावत आपके लिए नहीं है, जब आपको खबर मिलेगी तब आप आइएगा। यह इस बात को साबित करता है कि यह दावत मक्के में दी जा रही थी, लेकिन अभी आम नहीं हुई थी। इस दावा से कुरैश मक्का को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि यह पब्लिकली तौर पे थी ही नहीं। इस्लाम लाने का ऐलान भी किसी ने एलानिया नहीं किया था। शुरू के जो 3 साल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब के लोगों को दावत दी, अपने जान पहचान के लोगों को दावत दी, और इस तरह से इब्ने हशाम के सीरा में इनकी जो तादाद नंबर बताई गई है वह 40 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनली तौर पर इस्लाम की दावत पेश करके जो लोग इस्लाम लाए थे उनको रूहानी तौर पे तैयार कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में अगर जुल्म हो और उसको बर्दाश्त करना पड़े तो उन्हें किस तरह से मजबूती से दीन पर खड़ा रहना है। और इस्लाम का दावत जो था, अभी सोसाइटी में किसी को कोई उससे दिक्कत नहीं थी, यानी कुरैश मक्का को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश करके अगर कोई कबूल करता तो उसकी अपनी मर्जी थी, और इस्लाम में यह बात भी नहीं है कि किसी पर तशद्दुद करके इस्लाम को कबूल करने को कहा जाए। इस तरह से यह दावत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और जब इस्लाम का आखिरी दौर तो नहीं, इस्लाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, उस वक्त इस्लाम लाने वाले सहाबा की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है, लेकिन उसमें से 5000 लोगों के नाम पता है, और उनमें से भी सबकी जिंदगियों के बारे में पता नहीं है। शुरू के दिनों में तो मक्का वाले जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वाज और नसीहत करते हैं, लेकिन उन्होंने उसे समझा कि यह आम ही है, जैसे कि बाकी लोग कुछ दीन के बारे में कहते हैं। फिर जब सूरा आराफ की आयत नंबर 137 नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा है कि जो लोग कमजोर समझे जाते हैं उनको जमीन के मशरिक व मगरिब का, जिसे में हमने बरकत अता की है, उसका वारिस कर दिया, और तेरे रब का अच्छा वादा बनी इसराइल पर, जिस पर उन्होंने सब्र किया। थोड़ा सा इसका पस मंजर ये है कि मिस्र में जाने के बाद बनी इसराइल को पहले अच्छी पोस्ट पर और ओहदे दिए गए थे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे उनको फिरौन ने गुलाम बना लिया और उनसे भारी भारी काम लिए जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से उनकी आज़ादी दिलाई, और फिरौन के गर्क होने के बाद जब वह दरियाए नील पार करके मिस्र से निकले तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस फिलिस्तीन की बाबरकत जमीन का वारिस बना दिया। इस आयत का कहने का मतलब क्या है कि जो लोग दबे कुचले होते हैं तो वो सब्र करते हैं, और जो कुछ उनको कहा जाता है वो करते हैं, और फिर अल्लाह ताला का वादा ये है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को आगे आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अभी जो दावत चल रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें कोई जुल्म और सितम नहीं था। अभी यह स्टेज वह स्टेज था जब ईमान को पुख्ता किया जा रहा था और आपस में भाईचारगी कायम की जा रही थी, और उनमें से हर एक जिन्होंने उस वक्त इस्लाम लाया उनका बड़ा ही अच्छा
अच्छी शख्सियत हुई, बाद में वो लोगों के लिए रोल मॉडल हुए और उनको बहुत सारी खुशखबरियां दी गई जिनको इस्लाम लाने और कबूल करने के बाद दुनिया में भी और जन्नत की भी खुशखबरी दी गई। जब लोअर क्लास के लोगों ने इस्लाम लाया तो उसमें उसके बारे में एक जनरल रूल यह है कि अक्सर लोअर क्लास के लोग ही सबसे पहले हक को कबूल करते हैं। इसके बारे में सही बुखारी में एक हदीस है, जो कि हदीस तो बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ी सी उसके मफहूम को मैं बता रही हूँ कि हरकुल रोमन एम्पायर जो था उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के लिए खत भेजा। तो उसने उस खत को पढ़ा और उसके बाद से उसने पता किया कि कोई उस जगह का आदमी है तो उसको बुलाया जाए और उससे पूछा जाए उस नबी के बारे में। तो शाम में तिजारत के सिलसिले में अबू सुफियान बिन हरब गए थे, तो वहां से उसने अपने आदमियों से उनको बुलवाया और दरबार में हाजिर किया और हरकुलस ने कुछ सवालात पूछे जो बहुत ज्यादा सवालात थे। इनमें से एक सवाल यह भी उन्होंने किया हरकुलस ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, अभी जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, कि क्या किस तरह के लोग जो हैं उस दीन को कबूल कर रहे हैं। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया कि लोअर क्लास के लोग ज्यादा हैं और उनकी तादाद भी बढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में यह भी उन्होंने दिया। और फिर हरकुलस ने कहा कि बिल्कुल वह नबी सच्चे हैं और जो बात पेश कर रहे हैं वह हक बात है। हमेशा जब भी हक का पैगाम लेके नबी या रसूल आए हैं तो कमजोर लोगों ने ही उसको कबूल किया है, और जो रिच पर्सन होते हैं, जो दौलतमंद लोग होते हैं, वो लोग हक को जल्दी कबूल नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें इस बात का डर होता है कि जो उनका की पोजीशन है, जो उनका इक़्तिदार है सोसाइटी में, वह छिन जाएगा और उनको गरीबों के ही टेबल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम तो गरीबी और अमीरी के बीच में कोई फर्क नहीं रखता और अमीरों को यह बात कबूल नहीं थी। फिर जैसे लिस्ट में यह बताया गया है कि 8 लोग जो कि रिच पर्सन में थे और अबू बकर सिद्दीक के जरिए से भी ईमान लाए थे, और लोअर पर्सन के लोगों में कुछ लोगों का नाम हम जानते हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु और यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार बिन यासिर और सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये जो थे ये लोअर पर्सन के लोग थे। और रिच कैटेगरी के लोगों में जो थे अबू बकर सिद्दीक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और तलहा बिन उबैदुल्लाह, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद से ये दावत चल रही थी, उसी बीच में जिब्राइल अमीन आए और आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फरहत नेक्स्ट स्लाइड। तो एक हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन अल्लाह के हुक्म से आए और उन्होंने नमाज और वजू का तरीका सिखाया। शुरू के दिनों में जो हुक्म उतर रहे थे, जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रही थी, उसमें नमाज का भी हुक्म था। इब्न इस्हाक जो कि सीरह राइटर है, उन्होंने बताया कि मर्द और औरतें ज्यादातर ये इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और उनको दीनी तालीम और उनकी रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके साथ छोटी छोटी मजलिसों में रहते थे। तो हम
हम थोड़ा सा अगर देख लें वजू और हमारी याद दहानी हो जाएगी। वैसे हमारा एक सेशन दौरे कुरान के दौरान में नमाज के बारे में हुआ था, डिटेल सेशन। तो वजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने वजू करने का तरीका सिखाया, और वजू का तरीका सूरह मायदा में आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला ने बताया है कि चेहरे को धो लेना, केहनियों तक हाथों को धोना, और सर का मसा करना, और टखनों तक दोनों पैरों को धोना। ये फराइज हैं वजू में। और सुन्नत है कि दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, 3 बार कुल्ली करना, और 3 बार चेहरा धोना। दोनों हाथों को केहनियों तक 3 बार धोना, सर का मसा 1 बार करना, दोनों पाँव को टखनों समेत 3 बार धोना। दाहिनी तरफ से वजू की शुरुआत करना। और सुनन निसाई हदीस नंबर 95 में है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी तरह वजू करते देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही वजू करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने नमाज भी सिखाई। पहले शुरू के दिनों में नमाज जो थी सूरज के निकलने और सूरज के डूबने से पहले एक एक नमाज फर्ज थी, जो कि 2-2 रकात की होती थी, और यह नमाज फराइज में से थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 5 वक्त की नमाज है वह शब-ए मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। तो नमाज के थोड़े से बात हम कर लेते हैं कि नमाज में जो फराइज है तकबीर तहरीमा करना, यानी अल्लाह अकबर कह के हाथों को अपने कान की लौ तक उठाना, कयाम करना यानी खड़ा होना, सूरह फातिहा और कुरान की कोई सूरत या आयत की क़िराअत करना, रुकू करना, 2 सजदे करना, और क़यादा यानी नमाज के आखिर में बैठना, आखिर में तहियात और दरूद शरीफ पढ़ना, और नमाज से बाहर निकलना यानी सलाम फेरना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना। और नमाज के वाजिबात हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना, 1 सूरत या 1 बड़ी आयत पढ़ना, या 3 छोटी आयतें जो 1 आयत के बराबर हो, अत्तहियात पढ़ना, वित्र में दुआए कनूत पढ़ना। सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ अस्सलाम कहना वाजिब है और दोनों तरफ कहना है। नमाज की सुन्नतों में है कि नियत का होना कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, और किबले की तरफ रुख होना, वजू का होना, औरतों के लिए सतर का ढका होना, वजू का होना फर्ज है, औरतों के लिए सतर का ढका होना, तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाना, हथेलियों को किबला रुख होना, हाथ को सीने पर बांधना औरतों के लिए, बाईं कलाई के ऊपर दाईं हाथ की कलाई को रखना। नमाज में निगाहें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना, रुकू और सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना। रुकू करते वक्त पीठ और सर और कमर बिल्कुल एक लेवल में होना। रुकू करने के बाद सीधा खड़ा होना। सजदे में 7 हड्डियों पर सजदा करना। 2 सजदों के दरमियान थोड़ी देर के लिए वक्फा करना। तशहुद यानी तहियात पढ़ते वक्त शहादत की उंगली को उठाना और सलाम फेरते वक्त कंधे पर निगाहों का होना। यह थी मुख्तसर थी वजाहत वजू और नमाज के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं दावा के स्टेज। 3 सालों की जो तबलीग थी वह पर्सन टू पर्सन थी, और इसी दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई थी, और वह अल्लाह का पैगाम एक दूसरे को पहुंचा रही थी और अल्लाह के दीन को उसका मकाम दिलाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ओपन दावत करें, यानी अलानिया दावत करें। तो हम देखते हैं कि यह दावत जो थी
जो प्राइवेट दावा या जो ओपन दावा जो था उसके कितने स्टेजेस थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्राइवेट दावा है, जिसमें पब्लिक से कोई भी टकराव नहीं था। चुपचाप पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को इस्लाम के बारे में बताया जाता था। अगर वह इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक है, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। फिर पब्लिक दावा, बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी टकराव या झगड़े के, इसमें सिर्फ जबान से दावत व तबलीग की जा रही थी और वाज व नसीहत की जाती थी। अल्लाह के बारे में लोगों को बताया जाता था। किसी को कोई दबाव नहीं बनाया गया, इसमें सब्र करना सिखाया जाता था। और इस तरह की दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने नबूवत का एक बड़ा हिस्सा 10 या 11 साल लगाए। और ईमान लाने वालों पर कोई जुल्म भी करता तो उसको बर्दाश्त करना सिखाया जा रहा है। सब्र का इस दावत में बहुत ही बड़ा रोल था। इस तरह की दावत कुरान में कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर इस्लाम की दावत पर लोग इनकार कर रहे हैं तो उनके हाल पर छोड़ दें, जाहिलों को उनके हाल पर छोड़ दें। इस तरह की दावत 10 साल तक चली और उसके आखिरी 6 और 7 साल जो बहुत ही शदीद जुल्म सितम के थे और बहुत ही मुश्किल दौर था। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हफ्सा हिजरत करने का हुक्म दिया। इसमें ताइफ का वाकया, शोबे अबी तालिब में मुहासरा आपके खानदान का। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म अभी नहीं आया था कि अगर कोई एक मुसलमान को मारता है तो वह भी उसके साथ वैसा ही करे। यह दावत का दौर सिर्फ जबानी और अमन वाला दौर था, जिसपे कोई भी जाति के जरिए किसी को तकलीफ पहुंचाकर इस्लाम पेश करना नहीं था। फिर 3rd स्टेज ऑफ दावा। इस स्टेज में दावा तो जबान के साथ था, लेकिन इसमें था कि एक ग्रुप के साथ, आप सिर्फ एक ग्रुप के साथ जो आपको नुकसान पहुंचाता है उसके साथ आप जंग कर सकते हैं। और यह ग्रुप सिर्फ कुरैश मक्का था। और यह दावत जो थी मदीने में जाने के बाद शुरू हुई। जो ऊपर के जो 2 स्टेज हैं मक्के में थे और तीसरा स्टेज जो मदीने में हिजरत के बाद शुरू हुई थी। और 4th स्टेज ऑफ दावा है कि अपने बचाव के लिए अगर कोई अटैक करता है मुसलमानों पर तो दूसरों पर वार करने की जरूरत है तो उसको अपने को बचाव करना है। फिर ओपन दावा टू ऑल विथ ऑनर। जो ओपन दावा है वो मक्के से बाहर, मदीने से बाहर लोगों को दी गई। जब इस वक्त का एक वाकया था कि जब सुलह हुदैबिया हुई थी, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने पॉलिटिकली तौर पे जंग करने की इजाजत नहीं दी थी। जब सुलह हुदैबिया हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे सहाबा के साथ उम्रा करने की नियत से निकले थे। उनके पास हथियार भी थे और पूरे लोग भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने से मना किया। और यह बिल्कुल एक अमन वाला दावत का दौर था, इसलिए उस वक्त कोई लड़ाई नहीं हुई। और अल्लाह ताला ने इसीलिए मुसलमानों को फतह मक्का की खबर दी, जो कि बाद में सबने देखा। 5 स्टेज जो दावा था यह फाइनल स्टेज दावा का है। और ओपन दावा अलॉन्ग विथ फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन टू एनीबडी हु अपोज्ड इस्लाम, यानी जो भी इस्लाम को अपोज करे। इस्लाम फैल चुका था उस दौर में, जो भी इस्लाम को अपोज करे तो उसके साथ जंग लड़ने का हुक्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले ओसामा बिन जैद का लश्कर तैयार किया था रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा था जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचा था। और इसी चीज को बाद में सहाबा ने जारी रखा। और इस दावा के जरिए बहुत से फतुहात हुए और इस्लाम
दुनिया के कई हिस्सों में फैला, जैसे कि रोमन पर जीत हासिल की, दमस्कस यानी सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, नॉर्थ अफ्रीका और तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से। तो यहाँ तक इस्लाम इसी दावत के जरिए से पहुंचा। जब दावत शुरू हुई तो जबान के जरिए से दावत शुरू हुई थी।